Dear friends, welcome. Subhashkar Reddy here on behalf of Nature's Voice. I represent One Natural Herbal Remedies. We have been working and presenting all our works on food expressions, gene-based food expressions. We are trying to understand, how our foods, what we eat, and what are their expressions in us. And over the study, what we have observed, we first initially started off with for the diabetic patients and people suffering with some chronic conditions, which as is various it comes in our own friend circles, in our own communities, and in that way. But over the years, of consolidating and going deep into it and understanding, one thing what we have noticed is, though the disease do come due to various conditions, environmental, climate, the pollution, and maybe genetic reasons and all that, but the significant amount of chronic conditions today, what we see is due to our food, what we are taking. In this drive, we focused as we were being doing it, we came across patients suffering with cancer, patients suffering with diabetic, patients suffering with skin disease, many, because everyone take food. As we started off with the cancer patient, some of them who came to us and said that can we try? We said, okay, you can try. And that's how the whole process started. Over the time, we started developing that, okay, it alone was not resolving the issues. So we took assistance with some of the researches which have been conducted across the world and across the country, across the mountains, and the traditional practices which have been successful, which have proven scientific applications of it. And we came out with some supplements, okay, to complement with the diet and with the supplement, so that the conditions of their whatever the disease condition, the progression of it has been stopped, and they come to where the natural antibodies in the body starts working well, and the disease in fact do not progress for them. In this process, certain patients who have recovered from chronic conditions like cancer, in cancer around there are 4 or 5 cases I would like to present, where we have asked the channel in fact to go individually and speak to them and know how in fact they have gone through that and how they have recovered, and some who are already undergoing that, we are trying to present it. Namaste. Welcome to Nature Voice. I am Moshini here. Today we will share few stories how natural remedies can cure few chronic diseases like cancer, like liver, very severe liver diseases, and diabetes. So sir, welcome to our channel Nature Voice. क्या नाम है आपका सर? शुजात अली. ओके. सो सर, कब आपने डायग्नोज किया और कहाँ पे किया कि लाइक आपको कैंसर हुआ और ऐसा कुछ? मैडम एक्चुअली मैं सिगरेट बहुत पीता था. अच्छा. 20 से 30 सिगरेट पीता था. एवरी डे? ओके. और 40 इयर्स से पीता था. अच्छा. एक बार मेरे को 2016 में हार्ट अटैक हुआ. अच्छा. तो स्टेंट डाले, 3 महीने छोड़ा था सिगरेट, फिर नहीं छोड़ा गया, फिर पीता था. अच्छा. और ज्यादा होते गया. एक बार जाके हम लोग पूरा चेकअप कराया विक्रम हॉस्पिटल में. अच्छा. एकदम फुल क्लियर था लंग्स मेरा. बोल रहे थे कि छोटे बच्चों से अच्छा है लंग्स आपका. अच्छा. सिगरेट पीने के बाद? हाँ. अच्छा. तो मेरे को लगा कि मैं तो क्लियर हूँ, छोटे बच्चों से ज्यादा अच्छा ही. मैंने और ज्यादा किया, 23, 30 तक भी चला गया था. उसके बाद में अचानक मेरे को कॉफ ज्यादा शुरू हो गया. अच्छा. कॉफ शुरू होने के बाद में मेरे को एक्चुअली प्रोस्टेट का थोड़ा प्रॉब्लम था. अच्छा. तो वो चेकअप कराने के लिए गए, वो तो क्लियर था, कुछ नहीं था. लेकिन रहते रहते मैं एक्सरे एक बार देख लेंगे, खांसी क्यों इतनी ज्यादा हो रही है. एक्सरे लिया तो उसमें कुछ दिखा, वो मेरे को नहीं मालूम मेडिकली क्या होता है. मैं तो एक्चुअली विलेज का रहने वाला हूँ. अच्छा. और फार्मर हूँ. अच्छा. तो मेरी डॉटर है, वो ले जाके मेरे को टेस्ट करवाए, सिटी स्कैन निकाले.
सीटी स्कैन में भी कुछ निकला, फिर बोले नहीं ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है। फिर हम लोग कौन सी हॉस्पिटल थी वो, फर्स्ट रैंक? हाँ अच्छा, कोई हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल में हाँ, गए तो वहाँ पे तो डिक्लेयर हो गया कि है कैंसर है। हाँ कैंसर है, इनको निकालना पड़ेगा, थेरेपी करना पड़ेगा, वो सब बोल रहे थे। कहाँ पे हुआ था सर कैंसर? मेरे को लंग्स कैंसर हुआ लंग था कैंसर। सिगरेट की वजह से। अच्छा। लंग्स कैंसर हुआ था, बहुत खांसी थी, बहुत कफ था। तो फिर मेरी डॉटर और मेरे डॉटर के हस्बैंड दोनों को थोड़ा यहाँ का मालूम हुआ, सुभाष रेड्डी सर का। अच्छा। तो इन्होंने इनका इन्फ्लुएंस ये किया, यहीं पे जाके बताएंगे। मैंने तो इनको मना कर दिया था, मरना है मर जाएंगे, मैं थेरेपी नहीं कराऊंगा, मैं तो ये कह दिया था। अच्छा, आपको क्या लगा? क्योंकि मेरे खालू को क्या कहते हैं, अंकल, हाँ। मेरे अंकल को बोन मैरो कैंसर हुआ था। अच्छा। तो मैं उनको देख रहा था, उनका वो बाल निकलना, वो थेरेपी करके आने के बाद में वो जैसे हाँ, तो आपको लगा कि ये केमोथेरेपी जैसा होगा, हाँ, बाल निकल जाएंगे, हाँ, वो सब वैसे, स्किन खराब हो जाएंगे, हाँ, ये सभी का डर था? नहीं वो डर था, मैं बोल भी दिया था मेरी लड़की को कि मैं नहीं कराऊंगा कुछ भी। अच्छा। जाना है चले जाएंगे, बस हो गया, आपको क्या है, सब सेटल है, बच्चे भी सब अच्छे हैं। अच्छा। फिर बोले नहीं ये तो करना पड़ेगा, ठीक है, अगर नेचुरल का है कुछ तो इनको भी, हम लोगों को भी बहुत सारे लोगों से मालूम पड़ा कि यहाँ पे बहुत साल से 4th स्टेज में कैंसर आके अंदर हाँ क्यूर हो रहा है, और वो सब मामूली जो होता है ना वो एक्टिव हो गए हैं बल्कि। फिर मैंने सोचा कि चलो जाके आएंगे। जब आप पहले दिन मिस्टर सुभाष रेड्डी से मिले तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मुझे अच्छा लगा। अच्छा। लेकिन इनका डाइट थोड़ा ज्यादा था। हाँ, जो दिन में 40 सिगरेट्स पीते थे तो हाँ, उनके लिए डाइट थोड़ा टफ ही होगा। वो तो एकदम छोड़ना पड़ा, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा करके नहीं, एकदम कंप्लीट बंद करना पड़ा। मेरे को उससे बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। हो गया 1 साल 4-5 महीना हो गया, अभी तो कुछ नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो डाइट दिए वो डाइट में ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ फरिश्ता है। अच्छा। मेरे लिए उतना हुआ मेरे को इनसे फायदा। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मैं दोनों हूँ, वेज भी हूँ नॉन वेज भी हूँ, मेरा मन जैसा होता है वैसा करता हूँ। एक्चुअली मेरे को क्या है, जो काफ था मेरे को बहुत ज्यादा था। अच्छा। ऐसा हाथ उठा के खांसता था मैं। अच्छा, इतना ज्यादा था, हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा खांसी थी। जैसे मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, विदिन 1 मंथ मेरे को एकदम निल हो गया कफ, खांसी कुछ नहीं, अच्छा। एकदम निल। तो बहुत सारा ट्रस्ट आ गया आपको। बहुत ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा। जब आप ऐसे और हॉस्पिटल्स में जाते थे तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता था। बहुत ज्यादा, वो एक्सपेंसिव का सब वो मेरी लड़की को मालूम है, वो मुझे कुछ नहीं होती। वो पैसे का, फीस का, वो सब वही देखती है। अच्छा, तो यहाँ पे आके जब आपने मिस्टर सुभाष रेड्डी से बात किया तो आपको लगा कि ये अफोर्डेबल होगा, कि ये ट्रीटमेंट मैं करवा सकता हूँ, लगा आपको? देखिए लाइफ पे आ जाता है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो है। समझ गए, पैसे का नहीं, पैसा थोड़े कम आदमी को भी ये करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। जो इनका जो बनता है जो मेडिसिन, उसका तो वो चार्ज करेंगे ना। हाँ, लेकिन इनका जो क्या बोलते हैं वो ये नहीं है ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। कमर्शियल नहीं, हाँ कमर्शियल नहीं है। अच्छा। कमर्शियल नहीं है, और शो ऑफ नहीं है इसमें कुछ भी। अच्छा, तो ये देख के आपको अच्छा लगा? हाँ, हाँ। अच्छा, तो और नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है। आप जब मेडिसिन ले रहे थे, लाइक 1 महीना 2 महीना, तो कैसे हेल्प किया इसके? मीन्स नॉट इवन मेडिसिन, एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटर, सुभाष रेड्डी ने आपको कैसे हेल्प किया? बहुत अच्छा किया। 7 मंथ तक तो हम लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि डाइट तो स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हाँ। मैंने भी किया एक साल, हाँ 1 साल तो इतना स्ट्रिक्ट किया कि मैं क्या बताऊं, बहुत स्ट्रिक्ट किया। तो उसके बाद तो लाइक आपका टफ जर्नी रहा होगा जब आप डाइटिंग कर रहे थे, सिगरेट छोड़ना पड़ा। उससे तो मैं बोलता हूँ सारी दुनिया यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि इतना कम कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, चलो कुछ बुखार आ गया, इंजेक्शन लिए चले गए, कुछ दवाई दिए, डॉक्टर इंजेक्शन में नहीं दिया, दवाई खा लिया, बस क्योर हो रहा है, उसमें आप संतुष्ट है, तो वो क्यों नहीं करना।
जाके वो पूरा थेरेपी करा के बाल झड़ा के 2-2 दिन में हॉस्पिटल जाके, और कितना खर्चा भी कितना तो आप आया। बोलेंगे मिस्टर सुभाष रेड्डी ने आपको बहुत मोटिवेट किया बहुत डाइट के लिए भी। बहुत मैं थैंकफुल हूँ उनका। अच्छा। और वैसे बहुत सारे लोग को मैं रेकमेंड भी कर सकता हूँ इसके लिए। सो पोस्ट मेडिसिन ट्रॉमा कुछ है या इस मेडिसिन से आपको लगता है कि कोई साइड इफेक्ट है या कुछ ऐसे परेशानी आपको फील नहीं हुआ? कुछ नहीं है। जो मेरे को था, मैं हार्ट अटैक होने के बाद में मेरे को स्टेंट डाले, उस टाइम पे बीपी था मेरे को, और क्या था, कोविड के बाद डायबिटीज। कोविड हुआ था मेरे को अच्छा। 19 में फर्स्ट स्टेज में। और कोविड में मेरे को डायबिटीज आ गया। डायबिटीज मेरे को नहीं था, कोविड में आ गया। डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई खत्म होने के बाद में आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म हुआ नहीं, वो क्लोज नहीं हुआ। अच्छा। वो रेगुलर था। अभी मैं ये खाने के बाद में मेरे को डायबिटीज भी नहीं है, बीपी भी नहीं है। अच्छा। अभी तो जवान हो गया हूँ। हाँ, वो तो लग रहा है आपको देख के, आपको लग रहा है कि आपको बहुत हेल्प मिला ये मेडिसिन बहुत मिला। तो आप अपना जर्नी किसी के साथ अगर कोई फ्रेंड्स फैमिली में कोई ऐसा है तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं, जरूर बहुत सारों को शेयर कर सकता हूँ मैं। अच्छा। कोई ना हो ऐसा। हाँ, वो को ना, हाँ, हम तो बोलेंगे हम कि किसी चाहेंगे, को हाँ, भी ना हो। ना हो। हाँ, कोई लेकिन ऐसे जब हुआ है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा। It's really inspiring and it's हाँ। really grateful to know that Mr. Subhashkar Reddy is helping people like that. It is really appreciated. Thank you so much, sir, for sharing your journey with us. Thank you. So when you got to know that your father had that disease, that cancer, how do you feel? Okay. Obviously it's a trauma for family also. It's how you and madam was handling that trauma, because you cannot show in front of the patient. So how you handle that? Now we have to go back again, I think 1.5 years ago, Okay. October 2023. That was when my father was diagnosed with lung cancer. Okay. And we had to lie to him saying that there is something. Then when we took a PET scan, and then after the PET scan it was confirmed that it was a lung cancer and it was not in the beginning stages also. Okay. And we had been to a few oncosurgeons also before coming to Dr. Subhash Reddy. And when the oncosurgeons, any number of oncosurgeons, they just clearly said he is not in a stage where you can do a surgery. Oh, okay. They clearly told us, no, we can't do surgery because the patch is so big, it will be a big part of his lobe which has to be removed. And then we said immunotherapy, and they said no, he's out of that stage also where immunotherapy can work. They said it was only chemo and radiation. It will be a very difficult time. Yes, it was for me, but it was more for my mother. True. And then we were like, how do we tell my father about it? Because he's not in a stage where there's cure. We had to start with chemo and radiation, and that's a big trauma for us. And then we knew Dr. Subhash Reddy because my husband's friend, Okay. he was getting his wife treated by him Okay. because she was in the last stage of her brain cancer. Okay. She had already undergone 2-3 surgeries. Okay. And the doctor had said she's just going to survive for about 2-3 weeks now. Yeah. And that is when this angel came into their life, and alhamdulillah, she is really good now. A person who was supposed to go is living, and she's cancer free from past I think 3-4 years now. Okay. And she's still under observation. And that is when we said nothing doing, we are going to straight away start with Mr. Reddy. Okay. And it was a little difficult to convince my parents for that, but my mom was like, no, let's chemo and radiation be aside, let us start with whatever Dr. Reddy says. My husband also was like, no, and I was also like, no. So it was very easy to convince my dad, but not to my brother again. Okay. Because we have 3 siblings, and my brother was totally against Okay. natural. Yeah. Because he didn't believe. Yeah, I didn't believe because cancer is a very Yeah. So So he said no. He's like, you want to do this, you do this, it's okay. But we will go through allopathy also, let him go through the chemo, take a biopsy first. Yeah. But Mr. Reddy's only word was, no biopsy, no chemos, and I can help him.
Okay. And the first thing when we came to him, he was like, "How can I help?" And I was like, I was flat actually. Okay. That's the only thing. And yeah, alhamdulillah, so far so good. It was a little difficult for us to convince him for the diet again because Yeah. he didn't like veg. Initially, the first 3 months was only veg. But when it comes to cancer patients, like my father's diet and all, it is a very, very strict regime that he has to follow. He cannot cheat on it. Medicines, family support, and doctor support, of course.